بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔
जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। ये कयामत की निशानी है। आदमी मस्जिद से गुजरेगा लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा और सिर्फ अपने जानने वालों को सलाम करेगा। लोगों पर 3 एहसान करो। पहला, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो। दूसरा, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना दो। और तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। अपनी जिंदगियों से इतना प्यार ना करो क्योंकि ये किसी से वफा नहीं करती। और अपनी मौत को कभी मत भूलो क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देती। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। दुनिया में इससे बढ़कर कोई और तोहफा नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत दो क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकने लगता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। अक्सर औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं कि मैयत का मुंह ढाँप दें जिससे उसे कोई गैर महरम ना देख सके, लेकिन यकीन जानिए जिंदगी के लिए भी यही हुक्म है जिसे हम भूल बैठे हैं। रब अपने बंदे से फरमाता है, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। रात की तन्हाई में जब दुआ मांगो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सिर्फ मुझे ही सुन रहा है। इस दुनिया में हर शख्स के अंदर एक दूसरा शख्स होता है जिसे हम कभी जान नहीं पाते। शुक्र ऐसी शय है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर मसम्मत तब्दीली महसूस करने लगते हैं। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। इस दुनिया में दोस्ती का भरम सिर्फ वही रख सकता है जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। ज़बान से निकले हुए अल्फाज इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को जख्मी करते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जिसके सामने एक बात बार बार दोहरानी पड़े तो वो आपकी नसीहत का नहीं बल्कि आपकी खामोशी का मुस्तहिक है। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है तब बर्बादी की हद शुरू हो जाती है। अल्लाह ने जो अता किया उसे खुशी से कबूल कर लो और ऐसे तुम मकबूल हो जाओगे। महबूब से कुछ मांगा नहीं जाता, कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं की जाती क्योंकि उसकी बस खुशी देखी जाती है। इस दुनिया में जितनी आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी आपकी ज़िंदगी से सुकून उतना ही कम होता जाएगा। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो क्योंकि एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। मौलाना रूमी कहते हैं, लोग खुदी और अना में मुब्तिला हैं और रोज़ी की फ़िक्र में लगे हैं, मगर रोज़ी देने वाले से सभी गाफिल हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है और जहाँ आंसू गिरता है वहाँ रब की रहमत उतरती है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उससे अपनी इबादत को छीन लेता है। अगर तलब सच्ची हो तो खुदा की मदद पहुंच जाया करती है। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने शम्स से पूछा कि तसर्रुफ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख जाहिर हो।
मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है और सब इबादतें बोझ हैं। इस दुनिया में अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचते हैं, अल्फाज नहीं। जब मुश्किलात और परेशानियां दिल में डेरा डाल लें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही खुशियों का ताला खोलती हैं। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है और वो जन्नती या जहन्नमी बाद में बनता है। मौलाना रूमी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख जो पहले बहुत बोला करते थे। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो, जिससे तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। मौलाना रूमी कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और तुम्हारी नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। इस दुनिया में अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तुम औलिया की खिदमत से दूर हो तो हकीकत में खुदा की खिदमत से भी दूर हो। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। अगर इंसान में से मैं मर जाए तो उसका इश्क पुख्ता हो जाता है। जो कोई भी बगैर मुर्शिद के रास्ते पर चलता है तो शैतान उसे कहीं ना कहीं गुमराह कर ही देता है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप किसी के दिल को समझ सकते हैं या नहीं। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डी और गोश्त है। जब अकल पर पर्दे पड़ जाएं तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही अपने आप से मिला जा सकता है। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है और उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश पहले से ही उसके दिल में रख दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, क्योंकि महज सूरत और उसका लिबास देखकर तुम उसको पहचानने में धोखा खा सकते हो। जितने सजदे जवानी में करना है कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बिना सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। जब बोल ना पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, क्योंकि वो सब जानता है। जिंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। इस दुनिया में किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। जिस्म के दो आज़ा हैं और जब ये सुन होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। हम इस जहां में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम नहीं। इस दुनिया में बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हुजूम में तन्हाई बरकरार रखने वाला शख्स ही एक मजबूत जिंदगी का मालिक है। इस दुनिया में अच्छे तो सभी होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। हर किसी को अच्छा समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, पर मरे हुए के नाम पर देगे लुटा देते हैं।
इस दुनिया में अच्छाई को फैलाना पड़ता है और वहीं बुराई खुद ही फैल जाती है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की तह तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। आजकल के लोग आग माचिस से नहीं बल्कि अपनी ज़बानों से लगाते हैं। दूसरों की खामियां छोड़ दो और कभी खुद को भी आईने में देखो। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हो तो अपनी गलती को तस्लीम करिए, और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करिए। इस दुनिया में दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो है जो दोस्त बनकर आपको धोखा दे। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और आपकी मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। अगर आप सच बोलते हैं तो फिर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं है। फासले बढ़ते हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं, और फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। कभी कभी अच्छा लगता है कि सब जानकर भी अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। अगर तनकीद ही करना है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजे से ज़मीर जागता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में अगर इत्मीनान पैसे में होता तो सुकून कभी सजदे में ना होता। अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक कि ये खिल नहीं जाता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो उन्हें मज़हब का गिलाफ उड़ा दो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक एक साल के बराबर है। मौलाना रूमी कहते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है, और दुआ मोमिन का हथियार है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं सकता। माफ़ी से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। ए इब्ने आदम, याद रखो कि तुझे आराम के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। इस दुनिया में जो तुमसे ताल्लुक़ पसंद ही ना करता हो उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। दुनिया के लिए यही ऐप काफ़ी है कि इसमें वफ़ा नहीं। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। इस दुनिया में इब्लीस के पास गुस्से और औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई लश्कर नहीं।
جب اپنے کاموں میں تنگی محسوس ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے معافی مانگو۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس دنیا میں جس نے اپنی ماں کے پیر چومے، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔